today we are going to start our chapter number 12, my brother, यानी मेरा भाई. Sher Singh's little brother lay in the hut with a pain in his stomach that was getting worse. तो जो शेर सिंह है उसका जो छोटा भाई है उसके पेट में दर्द होता है और धीरे ही धीरे वो बढ़ने लगता है, यानी और ज्यादा बुरा होता जाता है. शेर सिंह himself was only about 12 years old, small and cheerful, a child of the jungle. His brother was several years younger. यहाँ पे 7 आएगा या फिर several कुछ साल छोटा भी हो सकता है. तो जो शेर सिंह है वो खुद 12 साल का है और जो उसका भाई है वो उससे भी कुछ साल छोटा. I will wring out rags in boiling water and lay them on his stomach, said his mother. तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि मैं क्या करती हूँ, पानी गर्म करती हूँ और फिर उसको उसके पेट पर रख दूंगी, उसको थोड़ी राहत मिलेगी. She did not weep. She had lived through everything over and over again. The streaming rags did not help. पर जो उन्होंने किया वो भी उसकी मदद नहीं कर पाए, वो भी उससे भी कुछ आराम नहीं लगता. After a while, Sher Singh's mother said he must be carried to the hospital at Kalaghat. तो फिर मदर बोलती है कि अब तो इसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, जो कहाँ पर है, कालाघाट में. Then Sher Singh thought that his brother was dying. तो उसको लगा कि उसका भाई तो मरने वाला है. All jungle people somehow think that the hospital is the last resort of the doomed. तो सब सोचने लगे फॉरेस्ट में, जंगल में, कि अब तो यानी हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, वही इसको बचा सकता है. I will run for my father, he cried. It may be days before you find him. Sher Singh's father was away in the jungle with a photographic expedition. All the men of Ladwani village too were with the expedition as beaters. तो वो मिस कर रहा था कि काश पापा यहाँ पर होते, हमारी हेल्प हो जाती, पर उसके फादर कुछ फोटोग्राफिक उसके साथ गए हुए थे, मतलब सारे मेंस वहां पर गए थे किसी काम से. शेर सिंह looked at his younger brother and saw that he was in great pain. तो अपने भाई को देखता है और देखता है कि इसको तो बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है. कालाघाट was at 50 miles away, but Sher Singh hoped that if he could get through the jungle and cross the 2 rivers in between, he might get up a lift in the bullock cart or perhaps even broke down truck for the last part of his journey. तो बोलता है कि ये तो यहाँ से कम 50 मील दूर है, पर मुझे ये सब अपने भाई के लिए करना पड़ेगा. शेर सिंह walked along, carry his brother on his back. तो वो अपने बैक पर अपने भाई को टांग कर चल देता है. He walked through the jungle. वो जंगल के आसपास जंगल से गुजरता हुआ जाता है. Night fell और रात हो जाती है. The sky became purple black. It blazed with stars. Sher Singh had good eyes. He could still see. तो रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा हो गया था. जो स्काई में जो स्टार्स है वो चमक रहे थे, पर जो वो है वो अभी भी देख रहा था और अंधेरे में भी चलता जा रहा था. Presently the moon rose. The sight of bear tracks in the dust, the square front paw and long back one with the shaggy claws made him glance round uneasily. तो वो बहुत मुश्किलें आ रही थी, कहीं पर उसको दिखाई दे रहा था, कहीं पर नहीं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी. वो अपने भाई को लेकर वहां पर चलता रहा. On a cliff above a river bed, Sher Singh knew he could go no further without rest. तो एक टाइम ऐसा आया, अब उसको लगा था कि अगर उसने रेस्ट नहीं लिया तो वो और ज्यादा आगे मूव नहीं कर पाएगा. Sweat was running off his shaking flesh. He sat Kunwar down and gently against a tree. तो देखो ये थक गया यहाँ पर, ये अपने भाई को एक पेड़ के सहारे से बैठा देता है और थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करता है. It was then that he heard the jostle and squeal of elephant. इतने में ही उनको एलिफेंट्स की आवाज आती है. Below him on the river bed, the elephants traveled. तो वहां से जो एलिफेंट है वो गुजर रहे थे. He could see the cows and the babies and one great old tusker. तो देखते हैं वहां से जो काव और उसके बेबीज है वो भी पास कर रहे थे. He was playing his trunk to and fro to lean whatever the breeze could tell him, and suddenly he hesitated. The trunk came round towards the boys. तो उनको मजा आ रहा था कि कैसे वो अपनी जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक कैसे मूव कर रहे थे. जो काउस है वो भी बहुत अच्छे से कर रही थी, पर वो एंजॉय कर रहे थे, पर जैसे ही वो उनकी साइड आती हैं तो एकदम से वो थोड़े हिचकिचा जाते हैं.
शेर सिंह chilled with fright with Kunwar to carry, he could neither climb nor run. तो वो इतना ज्यादा थक चुका था, न तो वो अब भाग सकता था और ना ही कुछ उसको अपने ऊपर अब बिठा सकता था। The tusker snorted, trumpeted, shook his head. Suddenly he hurried on angrily up the river bed and all the herd went with him. They disappeared. तो कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, वो पर क्या हो गए, कुछ टाइम बाद वहां से गायब हो गए। Sher Singh breathed one more prayer of thanks this time and got ready to move with Kunwar on his back once again. He scrambled down into the river bed. He stepped into the river. The water was cold and deep. Thank goodness, there was a bridge at the second river. It was a flimsy thing made of bamboo poles, stones, thick grass and river gravel, but it was at least a bridge. तो वो चलता है, अपने भाई को अपने ऊपर फिर से टांगता है बैक पर और चलने लगता है। तो पहले ब्रिज में तो कोई भी पाथ नहीं होता, जैसे ब्रिज है तो एक, जैसे ये ब्रिज हो गया, सॉरी रिवर हो गई, तो इस पे ब्रिज हो गया तो हम इस पर से चले जाएंगे, पर एक रिवर में तो नहीं था, उसको ऐसे ही जाना पड़ा। वहां पे बहुत ही ठंडा पानी था, पर उसने बोला कि चलो इसमें नहीं, अगले वाला जो रिवर है उसमें तो एटलीस्ट ब्रिज है, मैं उसके थ्रू चला जाऊंगा। वहां पर क्या थे, बहुत सारे बैम्बू थे, स्टोन्स थे और बहुत ही ज्यादा ग्रास वगैरह थी। He plodded steadily on. वो चलता रहा। Towards midnight he heard the second river ahead of him. तो रात का मिडनाइट यानी 11-12 का समय हो गया था और वो दूसरे रिवर के सामने पहुंच गया था। He heard it from far away, a steady roar of flood. उसको बहुत ही दूर से सुनाई दे गया जैसे कि फ्लड आने वाला है। When he came out on the shore, he saw it. जैसे ही वो शोर से बाहर आया, उसने उसको देख भी लिया। A big head of snow must have melted yesterday, and here it was. From bank to bank, the river formed. He looked for the bridge. It was not there. तो जैसे ही फ्लड आया, वो ब्रिज को देखता है, पर ब्रिज वहां पर नहीं था। So now how to cross? There was not a chance to swim. तो बोलते कि अब हम इसको कैसे पार करेंगे, और यहाँ पर तैरने का तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। Even alone he would be lost. अगर मैं अकेला भी यहाँ पर स्विम करूंगा तब भी मैं खो जाऊंगा। Perhaps among the wreckage of the bridge there was a way. पर क्या था, जो टूटा फूटा ब्रिज था वो वहीं पर पड़ा था, तो ये थोड़ा सा रास्ता हो सकता है। शेर सिंह gathered grass and plaited it into a rope. तो वो क्या करता है, ग्रास को लेता है और उसको एक रस्सी की तरह बनाता है। He tied the rope round his brother and himself so they would keep together. तो वो क्या करता है, उनसे बना कर एक जोड़ जाड़ कर एक रोप बनाता है, रस्सी बनाता है और ऐसे उसको अपने और अपने भाई में टाई कर लेता है, ताकि वो अगर कुछ हो जाए तो वो उससे जाकर अलग ना गिर जाए। Then he entered the water just above the bridge. तो वो एंटर करता है, जो ब्रिज के ऊपर पानी आया था उस पर चढ़ता है। It was so cold that he could hardly keep his hold. वो इतना ज्यादा ठंडा था कि वो मुश्किल से ही अपना बैलेंस बना पा रहा था। He did not know if his brother lived or died. उसको ये भी नहीं पता था कि उसका भाई बच भी पाएगा या नहीं। But he kept the child's head above the water and inch by inch moved along. तो उसने पूरी कोशिश करी कि मेरे भाई का जो हेड है वो पानी से ऊपर ही रहे, और वो बार बार उसको चेक करता रहा और आगे चलता रहा। He was deaf, blinded, frozen and tired, but he went on and on. उसको सुनना बंद हो गया था, दिखना भी बंद हो गया था, पर तब भी वो रुका नहीं, चलता रहा। Then the river seemed to lose power. They were through. तो ऐसा लगने लगा कि अब जो उसकी पावर है वो खत्म होने वाली है। After that, शेर सिंह did not know what happened. He was walking on and on. उसके बाद नहीं पता शेर सिंह कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस वो चलता रहा। There was a road. और ऐसे ही करते करते रोड आ जाती है। Then there was a better road. Far away in another world, there came sounds heralding a village. Suddenly somehow people, तो वो चलते चलते ही रोड पर आ जाते हैं और वो अच्छी खासी रोड आ जाती है। After that, the next he knew they were in a bullock cart, then a truck. Where have you come from, boy? लंडवानी। तो बाकी सब उनको लोग बाग दिखते हैं तो पूछते हैं बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो, तो बोलते हैं कि हम लंडवानी से आ रहे हैं। You carried him alone across the river in flood. तुम इसको अकेले लेकर आ रहे हो, फ्लड को भी तुमने पार कर दिया। They were at the hospital. अब वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शेर सिंह always felt shy of big buildings. He did not go in.
तो वो भाई बेचारे गरीब थे, फॉरेस्ट में रह रहे थे, जंगल में, तो उनके सामने इतनी बड़ी सी बिल्डिंग आती है तो उसमें वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि ऐसी उसको आदत नहीं थी। मच लेटर द डॉक्टर केम आउट ऑन द वेरांडा एंड सेड, तो कुछ टाइम बाद डॉक्टर आते हैं और देखकर बोलते हैं, यू आर द बॉय हु ब्रॉट द चाइल्ड फ्रॉम लंडवानी। यस, बोलते हैं क्या तुम वही हो जो वहां से इस बॉय को लेकर आ रहे हो? तो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। देन अ स्माइल ब्रोक ऑल ओवर द डॉक्टर्स जेंटल फेस, तो जो उसका फेस था वो सब कुछ ब्रोक हो जाता है, यानी वो सोचते हैं कि ये बच्चा कितना मेहनत करके यहाँ तक लेकर आया है। शेर सिंह बहादुर ही सेड, योर ब्रदर विल लिव, कम एंड से, तो बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा बहादुर बच्चे हो और तुम्हारा भाई जरूर बचेगा और आओ तुम उसे देख सकते हो। तो देखो सिर्फ उसने अपने भाई के लिए कितनी मेहनत करी, फ्लड भी आ रहा था और बहुत ही मेहनत के साथ वो पार कर करके अपने भाई को अपने ऊपर बिठा के, थका हारा, उसको दिखना भी बंद हो गया था, बहुत ज्यादा थक भी गया था, पर तब भी वो उसको वहां पर ले आया हॉस्पिटल में और फाइनली उसका भाई सेफ था, यानी उसकी जो मेहनत थी वो फाइनली रंग ले आई। तो आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने थोड़ा मोटिवेटेड फील भी किया होगा कि यानी जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हम उनसे कितना प्यार करते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।